ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಾಗ. श्रीराम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीराम समर्थ. सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराजर, सद्गुरु श्री ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದು, ಅಲೆಯ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗುರುಗಳು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಕಟವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಹಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರು 2 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸದ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇದು 8ನೇ ತಿಂಗಳು, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿದು 8 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. ಈ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಕಟತ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಗಳು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನ ಗದ್ದಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ? ಹಲೋ, ಆಡಿಯೋ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಲಿಯ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ಯಾನ್, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಇದಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಹಾಂ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದ ಅಲ್ಲ? ಏಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಹಲೋ 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 ಈಗ ಎಕೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಹಲೋ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿ? ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಈಗ? ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತದ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಬಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡು, ಇದ್ರದ್ದು ಮಲರ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇದನ್ನ ತೆಗಿಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಒಂದ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ. ಹಾಂ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಂ ಯಾವುದನ್ನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಮೈಕಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಈ ಹಸಿರು ವಾರ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತ್ತಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ಅದ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ, ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಂದು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆನ. ಹಲೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದು. ಹಲೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಮೈಟಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಾ? ಅದನ್ನು
ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಹಲೋ 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 ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು ನಾನು. ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಆಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಆಡಿಯೋ ಔಟು. ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರು ಹೌದಾ? ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಮಾಡಿ ಹಲೋ 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 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದಾನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರಿ. ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ? ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಣದು ಇದು ಕರಕರ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಈಗ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ್ 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 ಕೇಳಿಗತ್ತದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ. ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಈ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕರ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ ಹತ್ತತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಈ ನವಂಬರ್ದು ಇನ್ನೂ 4-5 ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಗೂಗಲ್ನೊಳಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ 2 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹತ್ತತ್ರ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು 30 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬಂದದ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ತನಕನೂ ಹೋತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ 34 ಬಂತು, 33 ಬಂತು, ಈಗ 30 ಬಂದದ. ನಾವು ಏನಂತ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವಾಗ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವೇನಂತ ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೂಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇವೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳು, ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕರು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ಗಳು, ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕರು. ನಾವು ಒಂದು 56-58 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ 100%
500 ಜನ 600 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 600 ಜನಕ್ಕೆ 600 ಒಬ್ಬರದೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 600 ಜನಕ್ಕೆ 600 ಜನರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿರಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಗದಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರವರು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ 100% ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಪರಪೂಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಂತೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸೂರು ಅವ್ರು ಎತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ, ರಾಶಿ ನಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುರುಗಳು 3 ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 10 ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದರೇ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಒಂದರೇ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಡಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರೆ ಮೊದಲು 20 ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 14 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 1,000 ಜನ ಆಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು 200 ಜನ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಹಸ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು 50 ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 60 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು 3 ದಿವಸ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 4 ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. 4 ಉಳಿದವ್ರು 4 ದಿವಸ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಗುರು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ವಿಕಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸವಿಸ್ತಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗ್ರೂಪ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗುರುಗಳು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾವು ಗುರು ಹೋದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಾರುತಿ ಉಪಾಸನ ಆಗೋ ನಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಾವು ಕೇಳಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಅದಲ್ಲ. ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಕಲ್ಪ ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜನ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಜನ ಸೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು 3, 5, 11 ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮಾಡಿರಿ, 2 ಮಾಡಿರಿ, ತಿಂಗಳ 100 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮನೆ ನನಗೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪು ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು 20 ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ 14 ಜನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ 3,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾ ಇದು 3,000 ಕೊಟ್ಟು 2,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅನಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಉಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ 100 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅಲ್ಲ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಡ್ಮಿನ್ ನಾನು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಡ್ಮಿನ್ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 284 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 220ರಿಂದ 230 ಜನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 30 ಜನ ಪೂರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 30 ಜನ ಕೆಲವರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ 2 ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಗ್ರೂಪಿನೊಳಗೆ 13, 15, 17, 100 ತನಕ ಹೇಳುವಂಥ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಜನರು ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾರಾಜರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನಾನು 1, 3, 5 ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಈ ಗುರುಗಳು ಭಾಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. 11 ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ 11 ಆಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 11ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ, ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ತಿಂಗಳ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 1, 3, 5 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ 7, 9 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪಿನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಏನಾರ ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು, ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ 13 ತಾಸಿನ ಜಪ ಅಥವಾ 5 ತಾಸಿನ ಜಪ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 3.5 ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನುಕೂಲ ಜನ ಎದಿ ದಶಕ್ಕಂದು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ನೊಳಗನ ಈ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದೇನಾದರೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದು 2 ವಿಚಾರ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. पुणे से श्रीपाद, एनी सजेशंस? ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳು. ಹ್ಞೂ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. वो ये सभा इसलिए बुलाया है कि हमारा वो हनुमान चालीसा का काउंट के बारे में एवरी मंथ हम वो सभा करते थे, लेकिन पास्ट 3 महीने से वो नहीं हुआ क्योंकि कुछ न कुछ अनानुकूल थे. इसलिए अभी इस शुभ संदर्भ में आप सभी लोग इधर है, सभी भक्त इधर है, मेजॉरिटी ग्रुप एडमिन्स इधर है, वो उपयोग करके गुरु जी का एक मोटिवेशनल वो लेने के लिए ये सभा ऑर्गेनाइज किया है. सो देर आर सम इश्यूज, फ्यू इश्यूज आर देयर. दो काउंट कम हो रहा है, महीने से महीने कम हो रहा है, इसलिए हम कुछ ना कुछ करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है, वो हमारा कुछ जोश कम हुआ है लगता है. अब ग्रुप एडमिन के वो जोश कुछ कम हो गया, इसलिए गुरु जी का मार्गदर्शन और मोटिवेशन चाहिए, इसलिए एक ऑर्गेनाइज किया है.
अगर आपके पास गुरुजी क्या बोला, अगर उनके पास कुछ आइडिया है आप इधर आकर के बोल सकते हैं। श्री राम समर्थ। मेरा दो विचार था। एक तो हमारे ग्रुप के एवरेज बढ़ाने के लिए, दूसरा साधकों की उनको आदत लगाने के लिए। पहला में कि गुरुजी का अपेक्षा था कि हम कम से कम 11 रखें एवरेज पूरा ग्रुप का, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो 11 से ज़्यादा भी है और ऐसे लोग भी है 1, 3, 5 वगैरह कर रहे हैं। तो लेकिन ये 1, 3, 5 करने वाले में रेगुलर मेंटेन करने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो महीने महीने देते हैं, चुकते नहीं हैं। तो ये लोग मतलब थोड़ा श्रद्धा है, लेकिन उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का चांसेस है। तो गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन लेके, उनका ऑडियो या वीडियो मैसेज लेके उनसे हम बात करेंगे तो 3 करने वालों को 7 कराने में शायद हो सकता है। तो ऐसे सारे लोगों को थोड़ा आगे आके हमारा ग्रुप का एवरेज 11 तक लेके आने की चांस है। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बहुत बार छोटा टारगेट 1 महीना या व्हाटएवर 1 महीना या 2 महीना टारगेट रखने से इस समय में आपको आपके परिवार से इतने हनुमान चालीसा होना है, ऐसा कुछ हुआ तो लोग छोटे पीरियड के लिए थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा अनुभव है कि 3.5 साल का जो संकल्प सुन के, पहले संकल्प शब्द सुन के थोड़ा पीछे हटते हैं, बाद में 3.5 साल बोल के और पीछे हटते हैं। तो छोटे छोटे पीरियड हम उनको टारगेट देंगे, थोड़ा आदत बढ़ाएंगे तो उनको 1 महीना करने का उदाहरण है। मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ, तो हम हनुमत व्रत कर रहे हैं। पहले हम डर रहे थे उसके लिए, तो अभी हमने शुरू किया, दोनों शुरू किया घर पे, अभी हिम्मत आ गई। तो वैसे शुरू किया तो लोगों को हिम्मत आता है। तो ये 2 सुझाव है। श्री राम समर्थ। मैं और केशव खाड़े, हम दोनों ग्रुप नंबर 30 के लिए काम करते हैं। हमारा आज तक का अनुभव ऐसे है, उस ग्रुप में 208 मेंबर्स है, जिसमें से कम 40 या 50 साधक ऐसे हैं जो महीने के 30 या 31 तारीख के आसपास बिना कोई प्रॉब्लम हुए अपना जो काउंट है और जो डेटा चाहिए वो हमेशा भेजते हैं, लेकिन बाकी के लोग वो काउंट नहीं भेजते। और 1 महीना मैंने खुद कोशिश की थी उनमें से कुछ साधकों को कॉल करके उनसे सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए कि आपका जो संकल्प है वो पूरा किया है कि नहीं किया है। तो उस संदर्भ में जब मैंने कॉल किया तो मेरा एक ऐसा अनुभव आया था कि लोग उस कॉल में जो जानकारी चाहिए वो छोड़ के बहुत ज़्यादा बाकी की चीज़ें बात करते हैं और बहुत समय उसमें निकल जाता है और 3-4 घंटे में सिर्फ 5 या 6 कॉल हो जाते हैं। और फिर दूसरे महीने हम कॉल करते हैं तो भी इसी तरह का अनुभव आता है। तो मैं और केशव यही बात कर रहे थे कि हम लोग अगर ये जो बचे हुए लोग हैं जो नहीं भेज रहे हैं, उन लोगों को अगर डिवाइड करके हम उन्हीं लोगों के साथ हमेशा के लिए संपर्क बना के रखें तो हम उनसे एक प्रकार के उनके साथ एक संपर्क बनाए रखेंगे। उनकी जो पहली जो बातें हैं, उनको जो जानकारी चाहिए वो देते रहेंगे। उन्हें जो जानकारी हमें देनी है वो 1 बार 2 बार सुन लेंगे। उसके बाद फिर उनके साथ एक बार हमारा अच्छे से संपर्क हो गया तो फिर उसके बाद से हमें वो जो जानकारी चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा का उनका महीने का जो काउंट है वो जो चाहिए वो हमें आगे से मिलता रहेगा। तो वो हम लोग करने के लिए सोच रहे थे। ये एक प्रॉब्लम है कि शायद वो लोग भेजने में देरी कर रहे हैं या फिर अगर हम पूछेंगे तो भेजते हैं, 2-3 बार अगर उनको मैसेज भेजेंगे तो कुछ लोग भेजते हैं। तो शायद ये भेजने में प्रॉब्लम है या कुछ लोग करते ही नहीं है। तो ये क्या एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम है ये शायद बात करने से ही पता चलेगा, क्योंकि 200 में से 40 लोग मतलब सिर्फ
परसेंट ही हमें ये लोग वापस मतलब भेज रहे हैं, तो बचा हुआ 80% क्यों नहीं भेज रहे? वो अगर हमें भेजना चालू करेंगे तो शायद हमारा काउंट बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ऐसे लग रहा है। तो अभी इसमें और गुरुजी क्या मार्गदर्शन करते हैं उससे भी हम लोग मतलब वो भी करते हैं, और ये भी हमारा एक सुझाव है कि इस तरह से जो भेज नहीं रहे उनसे भी अगर एक व्यक्ति कुछ चुनिंदा लोगों के साथ हमारा संपर्क बनाए रखेगा, उन्हीं के साथ बात करता रहेगा, उन्हीं के साथ संपर्क बना के उन्हीं से डेटा लेता रहेगा, तो शायद हमें उनसे भी उनका काउंट मिलता रहेगा यहाँ से आगे। श्री राम। ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ. ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರಹನಾದ. ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಜೋಶ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ग्रुप एडमिनಗಳಲ್ಲಿ घटक संचालकर उनका जोश कम हुआ है, हमारा जोश कम हुआ है, उनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। वो गुरु जी का वो मार्गदर्शन में हम कुछ न कुछ करेंगे, वो ज़िंदगी का सार्थक करेंगे। अब गुरु जी हमें मार्गदर्शन करें। ಅಡ್ಮಿನ್ನೋಳದು ಜೋಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳದು ಜೋಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗೇನೋ ವಾರ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದು ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಿಂತ ಹೋಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತೀವಿ, ದಿನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಈ ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲ, ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾದರಾಜ್ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಗತ್ತದ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೌಂಟ್? ಅನ್ಲಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತದ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತದ? ಕೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿದೇಹಾಪದಿ ಚಾಲುವೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕ ಜಯ ಮೇಳವೀತಿ नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजर हिंदी ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज जी के अनुग्रह से हम
करीब 38 सालों से श्री क्षेत्र हेब्बಳ್ಳಿ में श्री क्षेत्र हेब्बಳ್ಳಿ के जो दिव्य सानिध्य हैं, उस सानिध्य में रहकर और महाराज जी के लिए जो प्राणप्रिय ऐसे साधन हैं, यानी नामस्मरण, उपासना, अन्नदान, गोरक्षण इत्यादि, इन साधनों को पहली बात यह है कि हम अपने जीवन में उतार लेना है। आत्मनो मोक्षार्थम। और दूसरी बात जगद्धिताय च। नाम सदा ಅನ್ನೋಣ, ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಾಡೋಣ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ। पहले हम नामस्मरण करना चाहिए और भावना से नाम का गुणगान करना चाहिए, और बाद में तीसरी बात रही कि हम हमारे चारों ओर जो समाज हैं, उस समाज में जो जिज्ञासु हैं, साधक वर्ती के हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनके लिए भी उसमें प्रवृत्त होने के लिए हम ऐसे कहना चाहिए कि ऐसे कहने से उनका मन को भी कोई दुख न हो और हमारा मन भी अस्वस्थ न हो। हमारे मन के स्वास्थ्य और उनके मन के स्वास्थ्य, ये दोनों के तरफ लक्ष्य देकर ही अपने को दूसरे को कहना है। यदि कोई नहीं करता है तो उसे नहीं कहना चाहिए कि तुमको करना ही चाहिए, वैसे ही करना ही चाहिए, ऐसे नहीं। क्योंकि यह जो हम साधन के रूप में या परमार्थ के रूप में कर रहे हैं, वह इतना कठिन है कि भगवान श्री कृष्ण 4000 साल पहले अर्जुन को बताया है कि अर्जुन, यह बहुत कठिन है। हजारों लोगों में कोई एक दो उसमें प्रवृत्त होते हैं या नहीं, हम कह नहीं सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में करने की इच्छा रखने वाले लोगों में भी कोई, यानी अपने अंगुली से हम गिन सके इतने लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने वाले हजारों लोगों में कोई एक दो पहुंच सकते। तो ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण के रूप में बताते हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग एक नदी के प्रवाह में उस तरफ जाने के लिए कूद पड़े, तो उसमें से कोई एक दो उधर पहुंच सकता है। ऐसे संसार, यह एक प्रवाह है, प्रपंच। इस संसार के प्रवाह में हम उस तरफ जाने के लिए हम सब यानी कमर कस के कूद गए हैं, लेकिन वहाँ तक उस किनारे पे पहुँचने वाले कोई एक दो होते हैं। इतना ये कठिन है परमार्थ, अध्यात्म हम जिसको कहते हैं, वो इतना कठिन है। क्यों कठिन है? इसके लिए परिस्थिति भी कारण है। आजकल ऐसी परिस्थिति, इस समय ऐसी परिस्थिति में हम जकड़े हुए हैं कि हमको भी हमारी परिस्थिति के बारे में हमको ही विचार करने के लिए नहीं बन रहा है। हम भी विचार नहीं कर पा रहे। हमको भी लग रहा है कि यह जो कुछ चल रहा है वो ठीक ही है, लेकिन जो कुछ चल रहा है वह परिस्थिति हमको मार रहा है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम परिस्थिति के ऐसे पकड़ में पकड़े हुए और फंसे हुए हैं, जैसे शेर के मुंह में जैसे फंसे रहते वैसे फंसे हुए। लेकिन उस परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम फंस करके, और जो हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है, उसको हम सोच भी नहीं सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे पकड़े हुए हो तो भी हमको यह नहीं मालूम हो रहा है कि हम पकड़े हुए हैं, हम उसमें फंस गए हैं। और वह जो है हमको धीरे 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 अपने मुंह में ले रहा है।
इसलिए इस समय ये जो वैज्ञानिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना हमारे जीवन में, हमारे कुटुंब में, हमारे मन में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे दिमाग में इतना भर गया है कि साधु संतों का, सत्पुरुषों का जो विचार हैं, सत्पुरुषों के जो विचार हैं, उनको हम ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं और उसके अनुसार हम चल भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति, हमारे ब्रेन वॉश हो गया है। हमारा ब्रेन ऐसा वॉश हो गया है कि जो कुछ यहाँ पर दुनिया में दिख रहा है वही सच है, और जो कुछ हमको दिख नहीं रहा है उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, वो है ही नहीं है। यहाँ तक हमारी बुद्धि ब्रेन वॉश हो गया हमारा। हमको जो नहीं दिखता है, हमको जो सुनने में नहीं आता है, हमको जो खाने में नहीं आता है, हमको जो सूंघने में नहीं आता है, वह है ही नहीं। यानी इसके कारण यह है कि यह वैज्ञानिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति हमारी श्रद्धा को, जो हमको, हमारे इंद्रियों को जो विषय नहीं हो रहा है वह है। क्यों है कि वह है, ऐसे अनुभव लिए हुए हजारों लोग हमारे देश में हो गए। उनके शब्दों में हमारी श्रद्धा ही नहीं है, उनके बातों पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके बातों को हम सुन भी नहीं रहे। सुनने के लिए भी हमको समय नहीं है, विचार करना तो दूर रहेगा। इसके लिए मुख्य कारण यह है कि उसके बारे में हमारी श्रद्धा ही निकल गई है। हमारे मन में श्रद्धा नहीं रही है, हमारे मन में भगवान है यह श्रद्धा नहीं रह गई, हमारे मन में यह श्रद्धा नहीं कि धर्म है, भगवान है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि 5 बातों में जो श्रद्धा रखता है, जो वह है, ऐसे जो मानता है उसको आस्तिक कहना चाहिए। वे 5 बातें ऐसे हैं कि पहली बात है कि ईश्वर है, यानी दूसरी बात है कि यानी भगवान है, यह पहली बात है। और वेद के लिए वेदों की प्रामाण्यता है, यानी अस्ति ईश्वरः, अस्ति वेद प्रामाण्यम, अस्ति नाको नरकश्च, स्वर्ग है, नरक है। अस्ति अर्थात पुण्य पापंच, पुण्य है और पाप है। और अस्ति पुनर्जन्म है और पूर्व जन्म है। इन बातों में जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। हम लोगों में इनमें से कौन से बात पर विश्वास है? अस्ति ईश्वरः, हम अपने मन से भगवान है यह मानते हैं क्या? हम लोग कहते हैं कि हमको भगवान है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान है का कोई तो प्रमाण चाहिए ना, कोई तो अनुभव चाहिए ना, कोई तो अपने जीवन में व्यक्त होना चाहिए ना। भगवान है, हमको यदि भगवान है ऐसा लगता है तो हमारे जीवन का ढंग ही कुछ अलग हो जाता है, हमारे जीवन की भूमिका ही अलग हो जाती है। हम इतने पाश्चात्य संस्कृति और वैज्ञानिक संस्कृति के बीच प्रवाह में ऐसे बह के जा रहे हैं कि हमको भगवान है यह सोचने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, वेदों के लिए प्रामाण्य है, वेद अस्ति वेद प्रामाण्यम, वेदों में, शास्त्रों में हमको विश्वास नहीं रहा है। पाप पुण्यों के बारे में हमको विश्वास नहीं है, पाप के बारे में विश्वास नहीं। हम कुछ भी करके हम पैसे कमाने के लिए तैयार हो गए, कुछ भी करके। हम नाम नहीं बताते हैं, लेकिन हमको देख करके भी अच्छा ऐसा लगा कि हम नाम नहीं बताते कि ब्राह्मण होकर भी मांस के और मछलियों के मुझे होटल रखते हैं। हमको हमारे वर्णाश्रम धर्म में विश्वास है, हमको हमारे यानी भगवान के पाप पुण्य के बारे में विश्वास है, और हमको कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म के बारे में विश्वास है। हम ऐसे करेंगे तो हमको यानी बुरा जन्म मिल आएगा, ऐसा हमको लगता है।
ऐसे यदि पाप करेंगे तो हमको बुरा जन्म लगे आएगा, हम कुत्ते होके जन्म में आए, कुत्ते का जन्म आएगा, हमको अब म्हणजे दूसरे योनियों के जन्म में हम जाएंगे, ऐसे हम विश्वास नहीं करते। मर गए तो मर गए, खत्म। इसलिए क्या हो रहा है कि हमको हमारी दिशा ही बदल गई है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी इन साधु संतों की ऐसी आशा है, अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि कुछ न कुछ समाज में अच्छा हो जाए, कुछ न कुछ समाज में आस्तिक की भावना जागृत हो। इसलिए उन्होंने अपने जीवन उसमें डाल दिया है। ऐसी परिस्थिति में हमारा भाग्य है कि हम ऐसे एक महात्मा के, ऐसे एक सत्पुरुष के सहवास में आ गए, उनके सानिध्य में आ गए। भगवान ने हमको भी बहुत कुछ दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन हम उसको ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या हो गया है कि जीवन के स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि हम अंतर्मुख हो नहीं पा रहे। हम 24 घंटे बहिर्मुख हो करके दुनिया के विषयों के बारे में, वस्तुओं के बारे में हम इतने लालची हो गए हैं। हमको सिर्फ वे चाहिए। हमको ये मालूम नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कितना भयानक परिस्थिति में हम जा रहे हैं भविष्य में, इसके बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन आज हमको सावधान होने की म्हणजे घड़ी आ गई है। हमको सावधान होना चाहिए। कल सवेरे मैं बोल रहा था कि जागृति चाहिए हमको, हम जागृत नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि अभी हम हनुमान चालीसा के बारे में देख रहे हैं कि पहले 35 लाख का काउंट आता था, अब धीरे धीरे 30 तक आ गया है। इसमें गलती किनकी है, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दौर्बल्य हो रहा है, इसके बारे में यदि हम सोचें तो करने वालों में दोष है क्या? नहीं है। कलेक्शन करने वालों में दोष है क्या? नहीं है। करने वाले भी अपने इससे कर रहे हैं। परिस्थिति के बारे में परिस्थिति में दोष है। परिस्थिति ऐसी आ रही कि हम हमारे ध्येय को भूल रहे हैं, हम हमारे साधन को भूल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इससे भी हमारा प्रपंच में मन लगाना, यानी हमारे प्रपंच में डूबे रहना ही हमको आकर्षित कर रहा है। हमारी इच्छा न हो तो भी हम धीरे धीरे इसमें ही अपने मन को लगा रहे हैं, डूब रहे हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। जो 11 पाठ करता था आजकल वो आज 1 पाठ कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है। ह्यूमन सिचुएशन इतना ज़बरदस्त है कि हम करना चाहते तो भी हमसे हो नहीं पा रहा है। इसके लिए एक ही कारण है कि हमको सत्संग नहीं मिल रहा है। अभी समझो करने वाले को भी सत्संग नहीं है और जो कलेक्शन करने वाले हैं उनको भी सत्संग नहीं। कलेक्शन करने वाले जो पाठ करने वाले हैं, ठीक है, कम करते जा रहे हैं। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए उपाय क्या है, साधन क्या है? इसके लिए एक ही साधन है कि अगली मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूँ। पहली बात यह है कि कलेक्शन करने वाले जो हैं वो हर महीने हमारे साथ संपर्क में रहना चाहिए। तुम अपने अकाउंट हमको भेजो और हम आप लोगों से एक संकल्प करवा लेते हैं कि हम यानी इसमें कम से कम 50% 50% हम कलेक्शन करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे हम पहले संकल्प करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते थे पिछले दिनों में
यदि सैन्य इकट्ठा करना है तो उसमें उनकी एक ढंग था कि गांव-गांव में फिर करके वे अच्छे पराक्रमी लोगों को ढूंढ निकालते थे। अपने राज्य के गांव-गांव में फिर करके पराक्रमी लोगों को ढूंढ निकालते थे। उनको उनमें क्या करते थे कि उनमें कुछ न कुछ पराक्रम का एक प्रसंग उनको करने के लिए बोलते थे। उन 10-12 लोगों में कोई एक आदमी पराक्रमी होता था, तो ऐसे एक एक आदमी को एक एक गांव से शोध करके उनको एकत्र करके उनमें से एक पराक्रम का कुछ न कुछ प्रसंग खड़ा कर देते थे, युद्ध कराते थे। तो उसमें से कोई 4 लोग निकलते थे। उस 4 लोगों में फिर से पराक्रम का प्रसंग ला करके उसमें एक आदमी को ऐसे करते थे कि वो आदमी जो होता था वो महापराक्रमी, उस आदमी को सेनापति बनाते थे। ऐसे जो आप लोग हैं 50-60 लोग जो हैं, आप लोग सेनापति होकर के सिलेक्शन हो गए। जब हम इतने लोगों के ग्रुप के हम प्रमुख हैं तो हमको इतना सावधान रहना चाहिए कि हमारे सैन्य में एक भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी गलती हमारे ऊपर ही आता है, सेनापति पर ही आता है। सेना में यदि विस्खलित हो गई, सेना में कुछ यानी दुबलापन आ गया, सेना में यदि कमीपन आ गया, तो उसकी मुख्य जवाबदारी कौन होते हैं कि सेनापति होता है। इसलिए सेनापति केवल यानी अपने सैनिकों को क्यों यानी अपने जो साधक लोग हैं उन साधकों को बार फ़ोन करके पहली बात क्या पहले हम में क्या होना चाहिए ये बताता हूँ। हम में क्या यानी तैयारी होनी चाहिए। तो उनको फ़ोन करना बोलना वो ठीक है, लेकिन हम क्या होना चाहिए पहले हम सोचना चाहिए। हम इस विषय में हम भी अपने आत्मविश्वास यानी मनोबल अथवा और हम में भी आध्यात्मिक साधना उपासना का बल हम भी बढ़ाना चाहिए। हम भी कम पढ़ते, यानी जिस दौर्बल्य हम उनमें देख रहे हैं वह दौर्बल्य हम में भी है। हम कब सावधान होंगे इसके बारे में। इसलिए यानी मैं पहली बात यह है कि हमको हमारे मन में ऐसा भाव आ गया तो उनको जो पाठ करने वालों को हम बाद में जो पाठ के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जो यानी कि 50-60 लोगों का जो ग्रुप है वह पहले तैयार होना चाहिए। कैसे तैयार होना चाहिए कि वे कम से कम रोज़ 5 बार पाठ करेंगे, 11 बार पाठ करेंगे, और उस ऐसे करेंगे करके हम पहले संकल्प करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हर महीने तुम्हारे जितने भी काउंट हो, जितने भी कलेक्शन हो, पहले हमको मैसेज आना चाहिए। तुम्हारे जो ये होता है, जो ग्रुप लीडर होता है, उसको भेज दो, ठीक है, यानी अकाउंट के लिए यानी संख्या के लिए। यानी पहले हम आपको पहले ये करना चाहिए कि महाराज को निवेदन करना है अपने हमारे जो कलेक्शन हो गया है उसको हम पहले महाराज जी को समर्पण करेंगे। इसलिए तुम हमको हम आपको फ़ोन करना चाहते हैं, आपका फ़ोन नहीं लगता है वगैरह जो है ना तकरार, वो रहने दो, मैसेज दे देना। हर महीने पहले तारीख को हमको यानी जो कलेक्शन करने वाले क्या बोलते हैं उनको, हाँ, घट संचालक जो हैं, उनसे हमको मैसेज आना चाहिए कि हमारे ग्रुप के इतने हमको कलेक्शन हो गए। तब हम तुम्हारे कलेक्शन के परसेंटेज देख करके तुमको जो सजेशन देना है इंडिविजुअल, जो तुम्हारी भूमिका हमको जो तैयार करना है वो हम करेंगे। तब कुछ क्या हो जाएगा कि जो सेनापति हैं उसकी तैयारी पहली होनी चाहिए, और बाद में वो अपने आप अपने जो साधक मंडल हैं यानी संगठन है उनको क्या विचार पहुंचाना चाहिए वो खुद उसको ही मालूम पड़ जाएगा। आप लोग पहले हमसे संपर्क करो और हमसे पूछो कि हमारे ग्रुप में इतने लोग पास नहीं कर रहे हैं,
कितने लोग कम कर रहे हैं, तो फिर बाद में हम उनके लिए जो मैसेज अभी जो श्रीनिवास बता रहे थे ना, उनके लिए जो मैसेज हम देना है वे हम दे सकते हैं। उनको आप मैसेज दे सकते, 11 करने वाले आज 1 कर रहे हैं, तो हम उनको क्या बताना चाहिए, 2 वाक्य में हम उनको ऐसे मैसेज करेंगे, वो धीरे धीरे 11 तक आ पहुँचेंगे। वो अपने आप होने वाला, यह तो ऐसा है, धर्म हो या अध्यात्म हो, इसका स्वभाव ऐसा है, जैसे पानी को आप डाल देंगे तो नीचे के तरफ जैसे बह जाता है, वैसे ही यह आध्यात्मिक साधन, पारमार्थिक साधन या यानी ये जो भगवान का जो कुछ है, अध्यात्म का लक्षण ही ऐसा है, वो धीरे 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 कम हो करके आप, यह साधु संतों के लिए बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ी दुख की बात है कि समाज में यानी कोई और यानी प्रापंचिक या लौकिक विचार हो तो बढ़ते जाएगा, आध्यात्मिक विचार हो तो घटते जाएगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ये ज्वेलरी जो दुकान होते हैं, मोती यानी सोने चांदी के, मोती रत्न के जो दुकान होते हैं, उनमें दिन भर में एक गिरायक आ गया तो उनका काम हो जाता है। और वो मछली के बाज़ार में देखो कितना गर्दी रहती है वहाँ पे। ऐसे दुनिया में बाकी विषयों में बहुत गर्दी है, बहुत ये है, बहुत तना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको उधर ही लक्ष्य है, आकर्षण है, वे उससे इतने प्रभावित हो गए हैं, उनको इधर पकड़ के लाना कितना कठिन बात है, ये साधु सत्पुरुषों को ही मालूम है। हम पानी डालेंगे तो जैसे नीचे की तरफ बह जाता है, वैसे धीरे धीरे वे अभी कह रहे थे, शशि बोल रहा था कि अभी 30 तक आ गया है। ऐसे यदि हम, और पहली बात है कि हर महीने पहले तारीख को नहीं बना मीटिंग, जूम मीटिंग, 8 तारीख को करो, 10 तारीख को करो, 15 तारीख को करो, उस महीने में एक बार मीटिंग होना चाहिए। उस समय कम से कम हमको सबका लिस्ट देखने को मिलता है। और दूसरी बात है, हर एक जो ये हैं यानी ग्रुप लीडर हैं, वे हमसे संपर्क करेंगे। पहले हम सिर्फ आप मैसेज भेज दीजिए कि हमारे इतने यानी पाठ करने वाले यानी इतने लोग हैं, उसमें से इतने लोग दिए हैं, इतने लोग कम कर रहे हैं, ऐसे हमको ऐसे मैसेज आ गया तो हम कुछ ना कुछ ढंग से, कुछ ना कुछ माध्यम से हम उनसे संपर्क करेंगे। और हमको यानी पहली बात यह है कि हम महाराज से प्रार्थना करेंगे। पहले आप सब लोग हमको, आप लोग सब लोग, हम सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम महाराज जी के सामने ये अपना जो कलेक्शन है, संख्या है, जो कुछ पाठ हो रहे हैं, उनको महाराज जी को निवेदन करेंगे। वहाँ जो ग्रुप लीडर हैं उनको जो है तो उनको संख्या दिए तो भी वो महाराज को समर्पण होता है, ठीक है, लेकिन उस महीने के कलेक्शन कौन से ग्रुप के कितने हो गए यदि हमको भी समझ में आ गया उसी समय, तो हम भी उनसे कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जो अगली बिल्कुल कम कर रहे हैं उनसे हमको कांटेक्ट कर देंगे, तो हम उनको भी कुछ ना कुछ बताएंगे, यानी उनके लिए कुछ ऐसे कुछ विचार हम आपको भेज देंगे, आप उनको भेज सकते हैं। ऐसे करके इस ढंग से अपने को मैं यानी इसको एक दूसरा स्वरूप देने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। इसको इस संपूर्ण जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसा अपने स्वरूप बदलना चाहिए। ये जो है महाराज जी के संपर्क के साथ ही इसका जो चल रहा है वो आगे भी चलते जाना चाहिए। तो इससे सचमुच मुझे विश्वास है कि इससे हमारे इसमें जो साधन में बढ़ते जाएगा, साधन बढ़ते जाएगा। हमको यह भी विश्वास है हम 11 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे और उसको हम महाराज जी के चरणों में समर्पण कर लेंगे। और तीसरी बात यह है कि हम जो है यानी हर महीने मीटिंग करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में मीटिंग एक बार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर एक जो है कलेक्शन करने वाले हैं उनसे कलेक्शन मैसेज के रूप में हो तो भी चलेगा,
तो मैसेज के रूप में हमारे मोबाइल पर उनका मैसेज आ गया, तो हम आप लोगों से बोल सकते हैं कि क्या ऐसा क्या हो गया, क्या क्या यानी उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं और बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसको कैसे बढ़ाना चाहिए इसके बारे में हम कुछ न कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए पहले हर महीने हमको भी उसका जितने भी हो 50 हो 60 हो, जितने भी आप जो ग्रुप लीडर्स हैं उन सब का मैसेज हमारे इसमें आ गया, तो पहले हम देखेंगे कि कितने % कलेक्शन हो गया है और उसके लिए हम सीरियस हो कर के कितना एक्शन हम उसके लिए प्रतिक्रिया करना चाहिए, इसको हम देख करके इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना ज़रूरी है। मैंने पहले से बताया कि हम अपने जीवन के ध्येय को निश्चित करना चाहिए। मैं भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, दया से इस क्षेत्र में आया हूँ, इस फील्ड में आया हूँ, साधन क्षेत्र में आया हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आया हूँ। अब कुछ ना कुछ मेरे जीवन में, मेरे प्रापंचिक जीवन में मुझे यह भाग्य से मिला है, नहीं तो मैं यह भी नहीं कर पाता था। इतना भी मेरे हाथ से इतना भी यानी साधन नहीं हो पाता था। उन्होंने हमारे ऊपर दया करके यानी प्रत्यक्ष हमको और प्रत्यक्ष यानी हमारे व्यक्तिगत जीवन में करने को भी साधन उन्होंने बताया है और सेवा के रूप में करने का साधन भी बताया है। 4 लोगों को अपने साथ ले करके सेवा करने का भी उन्होंने बताया है, हमको दिया है। यह हमारा भाग्य है। हम अपने जीवन में आखिरी श्वास तक इस साधन करते रहेंगे और इसमें ही अपने जीवन की सार्थकता हम कर मुझे पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऐसे हम सोच करके ऐसे कटिबद्ध होकर इस कार्य में, इस साधन में, सेवा में लगना चाहिए कि मेरे लिए 3-4 साल तक महाराज जी ने ये कितना बहुत बड़ा भाग्य हमको दिया है कि 4 लोगों से वो जो कलेक्शन, वो जो पाठ करते हैं, वो पाठ को सिर्फ हम कलेक्शन करके यानी हर एक व्यक्ति के साथ हमको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ग्रुप में के हर एक व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क निरंतर रहना चाहिए। हम दुनिया भर के लोगों के अनेक जो जिनसे अपने को कोई उनसे हमको कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, उनसे भी हम कितने संपर्क में रहते हैं और कितने मोबाइल के वहाँ पर हमको क्या करता है कि हम उसका मुझे दुरुपयोग हो जाता है, उससे हमारे जीवन का बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे इसमें हमारे समय व्यतीत होता है। उसके बदले में हमको महीने रोज़ कुछ ना कुछ लोगों से संपर्क करके यानी पहले एक सप्ताह में जितने संपर्क हो गए उतने नहीं, रोज़ हम 2-4 आदमी के साथ रोज़ 2-4 जो अगदी कम कर रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे हमसे बोल करके हमारे साथ संपर्क करके ऐसे कुछ लोग हैं वे अभी अपने संख्या बढ़ा नहीं रहे, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ बता देंगे। हम आपसे बोलेंगे, आप उनसे बोलेंगे, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, आप ऐसे करो वैसे करो ना, आपका नाम हम बताएंगे गुरुजी को और वे आपसे खुद फ़ोन में बोलेंगे या संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे। और पाठ ज़्यादा करने के लिए उनकी भी यानी अंतःकरण पूर्वक उनकी भी कलकली से वे भी आपसे कहते हैं कि आप पाठ ज़्यादा करो। ऐसे हमारे कम्युनिकेशन जो हैं ये कभी भी यानी बिल्कुल खंड नहीं होना चाहिए। 24 घंटे 24x7 हमारे कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए और उस संपर्क के साथ, इन कम्युनिकेशन के साथ हर एक को पाठ करने वाले, एक ही पाठ करने वाला क्यों ना हो, उनको हमारा संपर्क रहना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ अच्छा विचार, अच्छे सत्संग की बातें हम उनको भेजते रहना चाहिए और व्यक्तिगत भेजते रहना चाहिए। ग्रुप में हम डालेंगे ऐसे हो तो बात ठीक है, लेकिन जो कम कर रहे हैं उनसे व्यक्तिगत आप कुछ न कुछ उनको मैसेज भेजना चाहिए, जो मैसेज हमसे आप लिए रहते हैं, और उनसे संपर्क करना चाहिए और उनके नाम हमको बताना चाहिए, नंबर देना चाहिए। जो कुछ कम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी संपर्क करेंगे। हमको विश्वास है
कि हम ये 2 साल में 11 करोड़ हनुमान चालीसा हम पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हम इतने उत्साह से, जैसे मैंने बताया ना, खेड़े गाँवों में जा करके 10-10 आदमी तैयार करके उसमें से और उस सिलेक्शन करके और कुछ करेंगे, ऐसे आप लोग जो हैं इस कार्य के लिए महाराज जी से सिलेक्टेड मेंबर्स हैं। आप लोगों को महाराज जी ने चुन लिया है और आप लोगों से यह काम उनको करवाना है, इसलिए आप लोग जो निमित्त हो गए हैं, यह आपका भाग्य है। यह सोच करके मन में रख करके मैं इस युद्ध में यशस्वी हो ही जाऊंगा और उनके आशीर्वाद के लिए मैं पात्र होऊंगा, ऐसे सोच करके हमको एक बार आप लोगों को छत्रपति शिवाजी के शिवगढ़ के लिए वो तानाजी मानसुरे, एक तानाजी मानसुरे करके तो सेनापति था, छत्रपति शिवाजी के सैन्य का एक सेनापति, एक टुकड़े का। तो उसके घर में शादी थी उसके लड़के का। तब शिवाजी का ये आ गया कि सिंहगढ़ के लिए सिंहगढ़ उसको उस पर आक्रमण करना है तुमको। तब वो क्या कहता है, उनके घर में शादी है, बेटे की शादी है, सब लोग कहने लगे कि शादी छोड़ के कैसे जाते हो। तो वो बोलता है कि शादी हो कुछ भी हो, शिवाजी से जब यह आदेश आ गया है, मुझे उन्होंने आज्ञा दी कि तुम शिवगढ़ पर आक्रमण करो, तो चला गया। एक छोटे से व्रत में है, एक 3 साल के व्रत में हम हैं। इस व्रत में हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि इस 3 साल में मेरे जीवन में कुछ भी घटे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे उसके तरफ मेरा कुछ भी नहीं, कर्तव्य नहीं है। मुझे मेरे सद्गुरु ने मुझे जो सौंप दिया है उसके लिए मुझे और कुछ की बात तरफ लक्ष्य देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो तानाजी मानसुरे चला गया युद्ध के लिए। उसके लड़के की शादी के समय छत्रपति शिवाजी आकर के उनको अक्षता डाला, उसमें मर गया। वो सिंहगढ़ तो जीत लिया, लेकिन वो सिंह जो है तो मर गया। आज तक वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। हमको इतना भी त्याग करना नहीं बनता है। हम जिस सद्गुरुओं को अपने सर्वस्व समझते हैं, उनके लिए अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन में इतना हमको इतनी एक छोटी सी सेवा दी है, तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि इसके सिवाय मेरे जीवन में मेरे लिए इन्हें उत्तम, इन्हें श्रेष्ठ ऐसी दूसरी बात नहीं है। मैं इसके लिए मैं प्राण तक देने को तैयार हो गया। मैं मेरे 2400 घंटे इसमें लगाने को तैयार हूँ। 3 साल तक मेरे संसार में, मेरे जीवन में, मेरे प्रपंच में कुछ भी अड़चन हो जाए, मुझे उसका कोई महत्व नहीं। यदि ऐसे बोले तो उठ के तुम्हारे पास आएंगे और तुमको प्रेम से आलिंगन कर ले। वे कोई ऐसी ये बात नहीं है कि उनका अंतःकरण हमारे तरफ कितना यानी प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए हम एक बार हमने वो किया है, संकल्प किया है, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे जीवन का आद्य कर्तव्य है, हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसके सिवाय हम दूसरा विचार करना भी हमको
हम अपने साधन करते रहेंगे, नामस्मरण करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन हमको यह भी मन में रहना चाहिए, 24 घंटे हमारे मन में ठोकते रहना चाहिए कि मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। समय मिल गया फ़ोन लगाया, समय मिल गया फ़ोन लगाया अपने अपने को यानी ग्रुप के सदस्यों को। हमको सोते समय ऐसे हमारे मन में आना चाहिए कि आज मैं कम से कम 4 लोगों से तो संपर्क किया, करो या न करो वो लोग, मेरे तरफ से जो करना मुझे शक्य था मैंने वो कर लिया। तो उस समय उस दिन की नींद जो है वो समाधान की नींद है। जिस दिन हमने एक से भी संपर्क नहीं किया उस दिन की नींद जो है समाधान की नींद नहीं हो सकती। अपने को ऐसा हम मन में ऐसा निश्चय करना, उस दिन की नींद जो है मेरे लिए वो समाधान की नींद नहीं ऐसा हो। ऐसे करके यदि हम करेंगे तो ये 11 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारी अंतःकरण पूर्वक ऐसी हमारी प्रार्थना है और विनंती है कि आप सब लोग इसमें ऐसे लगे, इसमें से ही आप लोगों का सचमुच इन्हें भविष्य उज्जवल है, हमारे सद्गुरुओं की कृपा प्राप्त होती है। और अपने को ऐसा तैयार होना चाहिए कि अब अगले दिन से यानी इस महीने के अगले दिन से जब भी हमको समय मिला हम अपने यानी रिश्तेदारों से फ़ोन करने के अलावा उनसे फ़ोन करते बैठने से भी अच्छा है कि हम ये हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। ये जो इन्हें हनुमान चालीसा पाठ करने के ग्रुप में के जो सदस्य हैं वे हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, वे हमारे गुरुबंधु हैं, वे हमारे गुरु भगिनियाँ। उनसे हम प्रेम से भी बोलना चाहिए, क्यों भैया क्यों तुम कम करते जा रहे हो, क्या तुमको क्या तो मैंने ये है, तुम थोड़ा करो। यह समय फिर से नहीं मिलेगा। 11 करोड़ हो गए तो फिर हम इसको सब डिसॉल्व कर देंगे, फिर हम नहीं कहेंगे कि किसी को तुम कलेक्शन करो वगैरह, फिर बाद में हम करेंगे तो उस समय वो मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन बता सकते। इसके अलावा और हम एक साधन की भूमिका और तैयार कर रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ने के लिए हम मन में सोच रहे हैं। वो यह है कि अब जो है अब 26 जनवरी 2022 को यहाँ आकर के हमको 38 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो हमारे मन में बहुत यह बात आती है कि हम अभी हनुमान चालीसा हो गया, राम नाम लेखन शुरू हो गया, ऐसे कर होते होते राम नामस्मरण के तरफ हमारे लक्ष्य कम हो रहा है। इसलिए हमको फिर से एक बार हमारे मन में जागृति होना जरूरी है कि हम राम नामस्मरण के तरफ अपने लक्ष्य इसलिए हम सोच रहे हैं कि 2000 यानी अभी 22 से 2024 तक 2 साल के समय में 2024 को यहाँ उपासना शुरू हो करके 40 साल पूर्ण होते हैं। उस निमित्त से हम 13 करोड़ जप राम नाम सद्गुरु महाराज जी के चरणों में हम समर्पण करें। इसलिए हम फिर से एक बार इन्हें हमारा ये शुरू करने वाले हैं कि साधन की बहुत बड़ा इन्हें स्वरूप हमको शुरू करना है कि 13 करोड़ करने के लिए। आज सवेरे इनसे बोल रहा था एक गांव को जो वो कितने करोड़ कर सकते हैं उतना उनको हम सौंप देंगे। धारवाड़ में इतने करोड़ हम करेंगे, हुबली में हम इतने करोड़ करेंगे, ऐसे गांव का नाम लिख लो और उनको जो है हम 13 करोड़ करेंगे, हम 13 करोड़ जप करेंगे, ऐसे जो कहेंगे नहीं हम 2 करोड़ जप करेंगे। छोटा गांव है, कम लोग करने वाले हैं, इसलिए हम 2 करोड़, ठीक है तुम 2 करोड़ करो। कोई गांव वाले बोले कि हम 3 करोड़ करोगे, ठीक है तुम 3 करोड़ करो।
ऐसे हो करके हमको 40-13 करोड़ 40-13 करोड़ यानी 52 करोड़ 52 करोड़ हाँ 520 करोड़ जप हमको पूर्ण होना चाहिए। उसके साथ हनुमान चालीसा के पाठ भी चालू रहेगा। जैसे हम रोज जो भोजन करते हैं उसके साथ और भी कुछ खाते रहते कि नहीं, पोहे हो चुरमुरे वगैरह, ऐसे अपने जप के साथ हनुमान चालीसा भी चलेगा, और भी कुछ साधन चलेगा, लिखना भी चलेगा, उपासना भी चलेगा। ऐसे करके हम 40-13 करोड़ का भी हम संकल्प करने वाले हैं। उसके लिए आप सब लोग उसके लिए भी बड़े उत्साह से और बड़े इससे हम उस साधन की जवाबदारी हमारे ऊपर ले करके हम उसको भी पूर्ण करना है। अब हम हमारे जीवन को, संपूर्ण जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पण करके उनकी सेवा और उनके आज्ञा पालन और उनके जो साधन है, यही हमारे जीवन के सर्वस्व होना चाहिए। इसे समझ करके हमको आगे जब पढ़ना बढ़ना है और हमारे जीवन सार्थक कर लेना है। सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भाग्यवंत हैं। हमको कोई बताने वाले तो है ना, हमको कोई साधन में लगाने वाले कोई है ना। यह कितने भाग्य की बात है। आजकल दुनिया में किनको यह मिलता है, दुनिया में किसको यह भाग्य मिल सकता है। करोड़ों करोड़ों लोग जो अपने जीवन में इतने यानी दुख के तरफ जा रहे हैं, उनको कौन बचाने वाले। कितने जन्मों के पुण्य था हमको यह मिल गया है। इसलिए हम ऐसे करेंगे और हमारे जो कम्युनिकेशन है वो निरंतर रहेगा उन साधकों के साथ और ये जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ और हमारे साथ और महाराज जी के साथ। ये हैं, ये निरंतर ऐसे होते रहेगा। तो 11 करोड़ नहीं, मेरा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने ही करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते। ऐसे करके अपने को समाज में हम देखते हैं कुछ लोग जो है ना, छोटे छोटे कुछ न कुछ संगठन करके एक छोटे से कुछ न कुछ इन्हें काम करने लेते। हमको ये मंदिर बांधना है, उसमें 10-20 लोग लगे रहते हैं। तो कितने इन्हें मन से लगे रहते हैं, वो मंदिर बनने के काम में अपने कितने ही समय देते रहते। मंदिर हो गया तो कितना अच्छा लगता है वो। ऐसे हमको यह मिल गया है, भाग्य से यह साधन मिल गया है, यह सेवा मिल गई है, यह समाज के साथ अपना संपर्क मिल गया है। इन सब को सार्थक करके हम महाराज जी के कृपा पात्र होना चाहिए। यही हमारी पुनः आप सब लोगों से, इनमें वालों से और आप आगे जो बैठे उन सब से भी हमारी यही विनंती है कि हम ऐसे करके अपने अपने साधन, अपनी अपनी सेवा और अपने अपने कर्तव्य के पालन करके हम सद्गुरु की कृपा पात्र हो, ऐसे हम मन से प्रार्थना करते हैं। और हम गुरु महाराज जी से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमको सबको यानी भगवान के भक्ति और सद्गुरु में अनन्य निष्ठा और भगवान के नाम में प्रेम दे। यही हमारी प्रार्थना है। अब आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और बाद में प्रदक्षिणा होगी और बाद में विश्रांति होगी। और आगे भी कल भी उत्सव का बहुत बड़ा यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यानी परसों उत्सव है, पुण्यतिथि उत्सव है। तो उसके यानी नज़दीक का दिन कल जो है वह भी बहुत यानी दिव्य भाव से भरा हुआ ही होता है। उसका अनुभव हम लेना है। उस दिव्य भाव में हम अपने आप को उसमें यानी तद्रूप तादात्म्य करके आनंद का, समाधान का अनुभव करें। यही हमारी सबसे विनंती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ब्रह्मांड नायक राजा विराज सिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्मदेव महाराज की जय।
सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ। ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ವಾದಿರಾಜ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾದಿರಾಜ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗೋಲ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ ಹೌದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ತಡೀರಿ ಹಾಂ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಡ ಅದು ಆಯ್ತು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅದು, ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಡೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಂ ಅದೊತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಳಿಸತ್ಗಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಅದೇನು ಹೊತ್ಬೇಡಿ. ಚಲೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾದರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು. ಅವ್ರೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ. ಫುಲ್ 100 ಇದೆ, 100 ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ 100 ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಹಲೋ